हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। आई एम ध्रुवी और आज हम देखेंगे इंटरप्ट प्रायोरिटी इन 8051। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू इंटरप्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, फिर हमने इंटरप्ट वेक्टर टेबल देखा था, आईएसआर देखा था, सारा कुछ देखा था। बट अब हमें देखना है कि इंटरप्ट को प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, यानी कि व्हाट इफ मोर देन वन इंटरप्ट अकर एट द सेम टाइम, तो कौन से इंटरप्ट को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। सो बाय डिफॉल्ट दिस इज द इंटरप्ट प्रायोरिटी. So upon reset, highest priority is given to external interrupt यानी कि INT 0. उसके बाद timer interrupt that is TF 0 for timer 0. INT 1 external interrupt 1. Then is timer interrupt 1, TF 1 and the last is serial communication यानी कि RITI bits जो हमने already serial communication के वीडियो में देखा है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा INT 0 एंड INT 1 दोनों इंटरप्ट एक साथ एक्टिवेट हो गए एट द सेम टाइम, तो विच विल बी द फर्स्ट इंटरप्ट दैट विल बी गिवन प्रायोरिटी? दैट इज इंटरप्ट 0. ओके, सो दिस इज द रीजन वाई वी आर यूजिंग इंटरप्ट प्रायोरिटी. नाउ विल लुक ऑन टू हाउ वी कैन सेट इंटरप्ट प्रायोरिटी विद द IP रजिस्टर. यानी कि ये तो बाय डिफॉल्ट हुआ, बट व्हाट इफ यूजर वांट्स टू गिव ये नीचे में से किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, तो क्या करना होगा? So setting interrupt priority with the IP register. So interrupt priority register is a bit addressable register. So we can alter the sequence of the table seen previously. जो हमने देखा था वो priority को एक user change कर सकता है by assigning a higher priority to any one of the interrupts. तो हम किसी को higher priority कैसे assign कर सकते हैं? That is done by programming a register called as IP register. So this is our interrupt priority register. These are the bits from D0 to D7. As you can see over here, D7 and D6 are reserved. उसके बाद PT2 that is IP.5. Now since it is bit addressable इसलिए हम लिख सकते हैं IP.5. तो ये जो हमारा bit है that is for timer to interrupt priority bit. क्योंकि हम 8051 कर रहे हैं, so this is not applicable to us. This is only applicable to 8052. Next PS that is IP.4. दिस इज फॉर सीरियल पोर्ट इंटरप्ट प्रायोरिटी बिट. अगर हमें सीरियल पोर्ट वाले इंटरप्ट को हायर प्रायोरिटी देना है तो हमें ये बिट को 1 करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज PT1 दैट इज टाइमर 1 इंटरप्ट प्रायोरिटी बिट. अगर हमें टाइमर 1 पे जो इंटरप्ट आएगा उसे प्रायोरिटाइज करना है तो दिस बिट इफ सेट 1 उसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी. PX1 इज फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, PT0 is for timer 0 interrupt and PX0 is external interrupt 0 priority bit. So अगर हम कोई भी bit को 1 कर रहे, it means that we are giving it higher priority as different from what we have studied in the previous table. So let us see a question. Program the IP register to assign the highest priority to INT1 external interrupt 1. Then discuss what happens if INT0, INT1 and TF0 are activated at the same time. So first for your reference we'll just write what is the by default यानी कि reset करने पे priority क्या थी. So the first is INT0, उसके बाद है TF0, INT1, TF1 and RI plus TI. Okay, so यहाँ पर INT0 को highest priority दी गई है, पर हमें कहा गया है कि अब हमें INT1 को priority देनी है, तो INT1 ऊपर आना चाहिए, right? तो how can we do that? Now we know we have an IP register which is a 8-bit register, bit addressable. तो हम पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है. So this is not used. This is PT0, this is PS, PT1, PX1, PT0 and PX0. So this is from D0 to D7. Okay, so D0, D1, D2, D3, 4, 5, 6 and 7. Now we have been asked to assign the highest priority to INT1. तो INT1 वाला मेरा कौन सा bit है? So the bit that responds to external interrupt 1 is this one, right? Because this is external interrupt 1 priority bit, right? यानी कि अगर इसको मैंने 1 कर दिया तो इसकी मैं प्रायोरिटी बना रही हूँ. आई एम मेकिंग इट गो इन द हायर लेवल. तो व्हाट कैन आई डू ओवर हियर इज, सिंस इट इज बिट एड्रेसेबल, आई कैन राइट दिस एज सेट बी IP.2 0, 1 and 2. So this instruction will make my INT1 को higher priority. Or if you want, you can write the same
थिंग वी कैन राइट इट एज मूव IP में. IP में कौन सी वैल्यू जाएगी? हैश 0 0 0 0 0 0 0 0 0. वन मोर, दिस विल बी 1 0 0 बाइनरी. ठीक है. सो दिस इंस्ट्रक्शन एंड दिस इंस्ट्रक्शन वर्क्स द सेम. बिट एड्रेसेबल है इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्टली इसको सेट भी कर दिया, अदरवाइज पूरे IP रजिस्टर में हमने ये वैल्यू डाल दी इन बाइनरी फॉर्मेट. सो दिस विल असाइन interrupt 1 higher priority. ठीक है. Now the second part of the question says discuss what happens if INT0, INT1 and TF0 are activated at the same time. तो what if INT0 आ गया, INT1 आ गया और TF0 आ गया. अभी हमने क्या देखा, हमारा क्या हो गया, INT1 has got the highest priority. Then जो भी होगा this has got the highest priority, that is fixed. अभी ये जो है वो टेबल के हिसाब से फॉलो होगा. तो दिस विल बी INT0 देन TF0 एंड सो ऑन. तो जब हमारे पास INT0, INT1 एंड TF0 आएगा, सो द फर्स्ट क्या बोलते हैं इंटरप्ट जो कंसिडर्ड होगा वो होगा INT1 बिकॉज वी जस्ट मेड इट एज हाई प्रायोरिटी. उसके बाद बचा है INT0 एंड TF0. सो INT0 टेबल में हायर लाई करता है, तो INT0 एंड देन विल गेट इट एज TF0. फाइन. Considering one more example, assume that after reset the interrupt priority is set by the instruction move IP comma hash this value. Discuss the sequence in which the interrupts are serviced. So for example, if we have an IP register, these are not used. This is PT2, PS, PT1, PX1, PT0 and PX0. This is D0, D1, D2, 3, 4, 5, 6 and 7. ठीक है. दिस इज बिट एड्रेसेबल रजिस्टर. तो अब हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमने ये वैल्यू डाली है, यानी कि 0 0 0 0 1 1 0 0, यानी कि हमने ये दो को प्रायोरिटी देने की कोशिश की है. अब यहाँ पर दोनों साथ में आ गए, तो कौन से किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी. सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी प्रायोरिटी टेबल क्या बोलती है, वी हैव INT0, वी हैव TF0, वी हैव INT1, वी हैव TF1 एंड देन वी हैव सीरियल कम्युनिकेशन का, राइट. बट नाउ व्हाट वी हैव डन इज PT1 एंड PX1 को हायर प्रायोरिटी, यानी कि एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 एंड टाइमर 1 इंटरप्ट को हायर प्रायोरिटी दी हुई है. तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर चले जाएंगे, यानी कि मेरा PT1 PX1 विल गेट PT1 PX1 will get higher priority and बाकी के as it is. So INT0 और TF0, right? तो अब ये ऊपर होगा या ये ऊपर होगा, कौन डिसाइड करेगा, राइट. अभी इसको मैंने ऊपर तो इसलिए लिखा बिकॉज वी हैव सेट इट एज 1. सो ये तो ऊपर आ गए प्रायोरिटी लिस्ट में, बट और ये तो नीचे है, ठीक है. बट अब ये दोनों में से कौन सा हायर प्रायोरिटी एंड कौन सा लोअर प्रायोरिटी होगा वो कैसे डिसाइड होगा. नाउ सिंस बोथ ऑफ द इंटरप्ट्स हैव कम एंड बोथ ऑफ देम हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय द यूजर, दोनों को 1 कर दिया है, तो इसका जो अभी प्रायोरिटी होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन डिफॉल्ट जो भी होगा. तो ये ऊपर तो चला गया, INT0 और TF0 के ऊपर तो चला गया, बट अब इन दोनों के रेसिंग में हाउ विल वी कंपेयर, वी विल कंपेयर देम बाय डिफॉल्ट जो उनकी प्रायोरिटी लिस्टिंग दी हुई है. सो INT1 और TF1 में जैसे कि आप देख सकते हो INT1 हैज़ गॉट मोर हायर प्रायोरिटी एंड TF1, तो इसलिए INT1 आया पहले, फिर TF1, देन INT0 एंड देन TF0. सो यू कैन राइट कि हाइएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी अगर तुम्हें लिखना है तो द फर्स्ट विल बी INT1, then it will be TF1, then INT0, TF0 and then serial communication wale interrupts. Okay, so I hope you have understood this. For any queries you can write to us in the comment section below. Please share it with your friends as much as possible. See you in next lecture. Till then, bye bye.